Hello everyone, this is lecture number 3, Loop in JavaScript. We have already discussed the types of statement in second lecture. Up till now we are study different concept of the JavaScript, advantages of JavaScript, features of JavaScript, and statements. There are three types of statements in JavaScript. We also discuss about the difference between the client side scripting and the server side scripting in lecture number 2, lecture number 1. We also discuss about the advantages of this and the disadvantage of a client side scripting and the server side scripting, right? And then we studied about the features of JavaScript and the advantages and the disadvantages of the JavaScript. Okay, so what is JavaScript? JavaScript is a what scripting language, client side scripting language for creating active web pages, right? We already discussed about the data types and the syntax of the JavaScript program, and in this lecture we are going to study the iterative statement and looping statement in JavaScript. Okay, so in chapter number 2, lecture number 2, we have discussed about the statement types of statements. Okay, so actually in every programming language there are three types of statements, right? First is the sequential statement, right? uh, in sequential statement, information flows in step by step in single statement. So compiler execute the line by line the code, and there is no iteration, no condition, right? For example, addition of the two numbers is an example of the sequential statement. In addition of two number program, we never use the uh, if condition, if else condition, switch condition, right? It is simple program. So addition of two number program is the example of the sequential statement program, right? Second is the selection statement, branching statement. We also call it as a branching statement or conditional statement, right? There are multiple control structure for implementing the conditional statement. Okay, for example, if condition, if else condition, nested if else condition, if else ladder, and finally switch case condition, right? So we have already discussed about the all the control statement, right? Selection statement or branching statement in lecture number 2. Now in this lecture we are going to study the looping statement. We can also call the iterative statement. Okay, so in JavaScript or any programming language, JavaScript is a scripting language, or any other heavyweight programming language, the syntax of the loops are same. The syntax of for loop in C programming, in C++ programming, and the Java core Java programming are same as in JavaScript. Okay, so this question we are discuss in uh, end of the our video. So now I am skip these questions. First we will study about the uh, looping statement. Okay, so the JavaScript loops are used to iterate the piece of code using for loop, while loop, do while loop, or for in loops. So we will study for in loop when we study array. So now
in this lecture we are going to study the three looping statement: for loop, while loop, and do while loop. So JavaScript loops are used to iterate, means repeated the statement, repeated the looping the statements. Okay, so here is no conditional condition also there, no sequential statement, so it may generate the iterative, means the infinite loop in your program. So we must catch try and catch the what condition. If condition abnormal condition, for example divide by 0 condition, we must catch the error and the solve it in every programming language. Okay, so we are going to study the three types of loops: for loop, while loop, and do while loop in this video, right? For in loops we are going to we will study in when we study the array, right? So loop make code compact, right? And loops are mostly used with the array, right? So we already studied in Java, core Java, and C++ about the loop with working with the array, right? So there are three loops: for loop, while loop, and do while loop. Okay, so three types of loop in JavaScript: for loop, while loop, and do while loop. We first study the syntax of the loop and then example. We will take the example. Okay, so start with the JavaScript for loop, right? Syntax is there. Each and every loop, for loop, while loop, and do while loop, contain the three section. First is the initialization. Initialization means it indicate starting of your loop, right? Second is the condition. Condition define and indicate the ending of your loop, right? So initialization indicate and define the starting of the loop, and the condition define the ending of the loop, and the increment indicate that how many increment of your loop, means how many step uh, loop will incremented, means it increment by 1, increment by 2 and 3 and so on, right? And in bracket code to be executed, right? तो यहाँ पे देखो, listen, each and every loop have three sorry sections, right? In for loop, first is initialization. Initialization indicate starting of your loop. Initialization क्या करेगा? It define the start of the your loop, right? Condition define the एंडिंग ऑफ द लूप, राइट? यहाँ पे कंडीशन चेक होगा. एंड इंक्रीमेंट यानी कितने से आपकी लूप को इंक्रीमेंट करना है वो डिफाइन होगा, राइट? तो सभी लूप में इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा, वंस अ टाइम, राइट? एक ही बार होगा इनिशियलाइजेशन, एक ही बार होगा. देन कंडीशन बार बार चेक होगा, राइट? तो पहला स्टेप इनिशियलाइजेशन होगा, सेकंड कंडीशन, और कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप के अंदर एंट्री करेगा और जो भी स्टेटमेंट से उसको एग्जीक्यूट करेगा. कंपाइलर क्या करेगा? फर्स्ट इनिशियलाइज करेगा, लूप को स्टार्टिंग पॉइंट देगा. देखो नीचे के एग्जांपल में i इक्वल टू 1 है तो स्टार्टिंग ऑफ योर लूप इज 1, राइट? उसके बाद कंडीशन क्या है? i इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू. i1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है तो स्टेटमेंट जाएगा. स्टेटमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई, तो वहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा. अगेन उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होगा? i प्लस प्लस यानी i बिकम 2, राइट? i का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, और अगेन कंडीशन चेक होगा, राइट? 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस. फिर से लूप में एंट्री करेगा. तो i इक्वल टू 1 जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है वो खाली एक ही बार होगा, उसके बाद वो स्किप हो जाएगा, राइट? i बिकम 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस. देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट i, वहाँ पे 2 प्रिंट होगा. अगेन i बिकम 3, i प्लस प्लस से क्या होगा? i बिकम 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, करेक्ट, राइट, ट्रू. उसके बाद वो क्या होगा? लूप में एंट्री करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 3 प्रिंट होगा. उसके बाद फिर से i इंक्रीमेंट 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, 4 प्रिंट होगा. देन i बिकम 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, करेक्ट, 5
इज लेस देन और इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5 प्रिंट होगा। अब i इक्वल टू आई प्लस वन, आई प्लस प्लस वन, तो 5 आई बिकम 6, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नो, तो वहाँ पे क्या होगा, लूप ब्रेक होगा, राइट, ऑटोमेटिकली लूप ब्रेक होगा। तो फॉर लूप में क्या होगा, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा, देन स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर, फिर कंपाइलर लूप की आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, अगेन कंडीशन चेक, तो ये लूप कितने बार चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा, और आउटपुट में आएगा 1 2 3 4 5, तो 5 तक आउटपुट आएगा। उसके बाद ये जो लूप है ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। तो ईच एंड एवरी लूप कंटेन द 3 सेक्शंस, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट, ये सारी लूप के लिए सेम है, खाली उसके सिंटेक्स अलग अलग हैं। आई में क्या होगा, फॉर लूप में क्या होगा, फॉर लूप एंड इन पैरेंथेसिस तीनों चीज़ें एक ही साथ आ जाएगी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, तीनों चीज़ें एक साथ ही आ जाएगी। ज़्यादा करके एरे यूज़ करेंगे तब हम ये फॉर लूप यूज़ करेंगे और फॉर इन लूप यूज़ करेंगे, राइट। तो ये फॉर लूप का सिंटेक्स है, एग्जाम में आएगा एक्सप्लेन फॉर लूप विथ सिंटेक्स और एग्जाम्पल, तो कोई भी ये सिंपल सा एग्जाम्पल आप दे सकते हो और सिंटेक्स आपको ऊपर लिखा हुआ है, राइट। तो इन जावास्क्रिप्ट में जो स्टेटमेंट के बाद सेमी कोलन देना क्या है, ऑप्शनल है, अगर आपने सेमी कोलन दिया तो भी चलेगा और नहीं दिया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई के बाद हमने सेमी कोलन नहीं दिया है, तो जावा में जो इंटरप्रेटर वर्क करेगा, इंटरप्रेटर क्या करेगा, जो सेमी कोलन ऑटोमेटिकली उसको कंसिडर करेगा और स्टेटमेंट को ब्रेक करेगा, राइट। सो यहाँ पे फॉर लूप का सिंटेक्स हो गया और फॉर लूप का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट लूप इज़ अ वाइल लूप। वाइल लूप में भी 3 सेक्शन होते हैं, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, राइट, सेकेंड कंडीशन, थर्ड इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। देखो मैंने सिंटेक्स में कुछ चीज़ें मिसिंग कर दी है। देखो वाइल के ऊपर क्या होगा, इनिशियलाइजेशन, राइट, सिंटेक्स में वाइल के ऊपर क्या होगा, इनिशियलाइजेशन, फिर वाइल कीवर्ड आएगा, राइट, एंड उसके बाद क्या आएगा, कंडीशन। कंडीशन हमको यहाँ पे देनी है। इनिशियलाइजेशन क्या करेगा, इंडिकेट द स्टार्टिंग ऑफ योर लूप, लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। कंडीशन क्या डिफाइन करेगा कि लूप कहाँ तक जाएगा, और उसके बाद कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट आएगा। तो पहले इनिशियलाइजेशन वाइल लूप के ऊपर आएगा, वाइल कीवर्ड के साथ कंडीशन आएगा, और इन ब्रैकेट लूप की बॉडी के अंदर क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया हुआ, राइट। तो स्क्रिप्ट इज what a tag, it indicate the starting of your JavaScript, right. Variable is a keyword for defining variable in JavaScript, यहाँ पे var where I equal to 11, तो स्टार्टिंग और लूप, स्टार्टिंग ऑफ योर लूप इज 11, तो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 11 से स्टार्ट होगा, राइट। वाइल I इज लेस देन इक्वल टू 15, तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 15, कंडीशन क्या है, ट्रू, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई का वैल्यू कितना है, 11 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस मीन्स व्हाट, आई इक्वल टू आई प्लस 1, राइट, तो आई बिकम 12, राइट। 12 के बाद फिर से वो कंडीशन पे जंप करेगा, राइट, एक इटरेशन हुआ, फिर सेकेंड इटरेशन स्टार्ट होगा, 12 इज लेस देन इक्वल टू 15, यस ट्रू, फिर से वो लूप के अंदर जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 12 प्रिंट होगा, आई प्लस प्लस से आई एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई बिकम 13, राइट। अगेन वो लूप कंडीशन पे जाएगा, 13 इज लेस देन इक्वल टू 15, करेक्ट, अगेन वो लूप में जाएगा, 13 प्रिंट होगा, आई प्लस प्लस आई 14 हो जाएगा, फिर अगेन वो कंडीशन में जाएगा, 14 इज लेस देन इक्वल टू 15, करेक्ट, 14 प्रिंट होगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1 होगा, 15 आई का वैल्यू 15 होगा, 15 इज लेस देन इक्वल टू 15, ट्रू, करेक्ट। यहाँ पे क्या होगा कि है ना, 15 का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा और आई एक प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू 16 हो जाएगा, तो 16 इज लेस देन इक्वल टू 15, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, 16 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 15, तो यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगा। अब ये देखो हमने कंडीशन में आई लेस देन अगर 15 रखा तो आई का वैल्यू 15 हुआ तो भी लूप क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि आई 15 इज नॉट लेस देन 15, राइट, वो इक्वल है, राइट, तो लेस देन इक्वल टू किया तभी 15 पे क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा। अगर हमने ओनली आई लेस देन 15 किया और आई का वैल्यू 15 है तो लूप का वहाँ पे जो कंडीशन होगा फॉल्स हो जाएगा और वो लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये एग्जांपल में हमारा आउटपुट आएगा 11, 12, 13, 14 एंड 15, राइट। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी 3 चीज़ें, इनिशियलाइजेशन लूप के ऊपर होगा, कंडीशन वाइल कीवर्ड के साथ यूज होगा, राइट, और वो इंडिकेट करेगा एंडिंग ऑफ योर लूप,
उसके बाद जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होगा वो लूप के अंदर होगा। तो ये वाइल लूप हो गया। अब इस तरह हम जो डिक्रीमेंट ऑर्डर में भी लूप हम चला सकते हैं, राइट। जैसे कि i इक्वल टू 15, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, राइट, एंड द डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई और आई माइनस माइनस। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा, पहले 15 आएगा, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11, और 11 पे लूप ब्रेक हो जाएगा। तो हम लूप इंक्रीमेंट ऑर्डर में भी चला सकते हैं, राइट, यानी 1 टू हायर वैल्यू 1 2 3 4 5, और या फिर डिक्रीमेंट वैल्यू में भी चला सकते हैं, यानी पहले हाईएस्ट वैल्यू आएगा फिर डिक्रीमेंट होगा, राइट। तो हम लूप को दोनों तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है डू वाइल लूप। ओके, तो सेम थिंग यहाँ पे भी मैंने कुछ मिसिंग किया है। वहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन, डू के ऊपर इनिशियलाइजेशन आएगा, राइट, फिर डू कीवर्ड आएगा, ओपन लूप होगा, उसके बाद कोड एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, और फाइनली ब्रैकेट क्लोज होने के बाद वाइल के साथ यहाँ पे कंडीशन आएगा, और कंडीशन के साथ सेमीकोलन होगा। तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है, व्हाट इज जो एग्जाम में बार बार आता है और इंटरव्यू में भी बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, राइट। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है कि तीनों वाइल लूप में जो होगा वो कंडीशन पहले चेक होगा, इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट। यहाँ पे 3 स्टेप इस तरह होगा, पहले इनिशियलाइजेशन होगा, देन कंडीशन चेक, और उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, राइट। मगर डू वाइल लूप में क्या होगा, पहले इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, और उसके बाद कंडीशन चेक होगा, राइट। तो ये मेन डिफरेंस है कि अगर लूप फॉल्स है, राइट, तो भी इंटरप्रेटर एक बार लूप के अंदर एंटर करेगा, राइट। अगर वाइल लूप में अगर फॉल्स हो जा रहा है कंडीशन, राइट, तो लूप में एंट्री नहीं करेगा, वहाँ पे वो लूप को ब्रेक कर देगा, राइट। मगर डू वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी एक बार लूप के अंदर एंट्री करेगा, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन बाद में चेक होता है, लूप में पहले एंट्री होती है और कंडीशन बाद में चेक होती है। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर, राइट। एक तो आप ये लिख सकते हो, राइट, यहाँ पे डू कीवर्ड यूज होता है डू वाइल में, वहाँ पे डू कीवर्ड यूज नहीं होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे क्या है कि पहले वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सीक्वेंस आएगा। डू वाइल लूप में क्या होगा, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड फाइनली कंडीशन, राइट। ये दूसरा डिफरेंस हुआ। तीसरा डिफरेंस क्या होगा, उसका सिंटेक्स लिखेंगे। फोर्थ डिफरेंस में उसका एग्जाम्पल लिख देंगे, राइट। और ये इस तरह इसका डिफरेंस हो जाएगा, राइट। और एक डिफरेंस और लिख सकते हैं कि वहाँ पे वाइल कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं आएगा, और यहाँ पे सेमीकोलन देना कंपलसरी है, क्योंकि है ना यहाँ पे वो इंडिकेट करेगा दिस इज अ एंडिंग ऑफ योर लूप, राइट। तो यहाँ पे वाइल लूप के पीछे भी वाइल लूप के कंडीशन के बाद सेमीकोलन आएगा, राइट। तो ये एग्जांपल में देखो आई का वैल्यू 12 है, राइट, और हमने डू करके लूप को स्टार्ट किया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई का वैल्यू 21 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आई प्लस प्लस आई बिकम 22, देखो एक बार लूप में एंट्री करके आई का वैल्यू अगर इसने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, आई बिकम 22। अब वाई उसके बाद ये लूप के बाहर जाके कंडीशन चेक करेगा, 22 इज लेस देन इक्वल टू 25, करेक्ट, राइट, करेक्ट। तो फिर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट 22 प्रिंट होगा, राइट। उसके बाद 23 प्रिंट होगा, उस तरह 24 प्रिंट होगा, 25 इज लेस देन इक्वल टू 25, करेक्ट, 25 प्रिंट होगा, राइट। उसके बाद आई का वैल्यू 26 हो जाएगा, तो बाद में 26 हो जाएगा, तो आई इज 26 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 25, राइट। तो यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 21, 22, 23, 24, 25, राइट। तो ये इस तरह इसका सीक्वेंस चलेगा, राइट। और मैंने डिफरेंस आपको बता दिया, राइट। तो इस तरह ये क्या है, डू और वाइल लूप में देखो तीनों लूप से हम सेम काम कर सकते हैं, मगर है ना एज पर द कंडीशन, कुछ प्रोग्राम के अंदर वाइल लूप ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और कुछ प्रोग्राम के अंदर फोर लूप ज़्यादा, फोर लूप पे प्रोग्राम करना बहुत ईजी होता है, राइट। तो एज पर द कंडीशन हम क्या करेंगे, वो लूप को हम यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे 3 लूप हो गया, फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, राइट। अब उसके बाद अगर एग्जाम में ऐसा आया कि डिफरेंस बिटवीन द वाइल लूप एंड फोर लूप, तो कैसा लिखना है आपको कि फोर लूप में तीनों स्टेटमेंट साथ में आएगा, उसका सिंटेक्स आएगा, और वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन पहले आएगा, कंडीशन आएगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आएगा, राइट। और वाइल कीवर्ड आएगा, वहाँ पे फोर कीवर्ड आएगा, उसके बाद उसका सिंटेक्स, उसका एग्जाम्पल, राइट। एग्जाम्पल लिख दे के आपको एक्सप्लेन करना है, ओके। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, राइट। सो जावा
स्क्रिप्ट फंक्शंस, तो ये लूपिंग के बाद फंक्शंस आते हैं, राइट। फंक्शंस क्या है, इच इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप ऑफ कोड, राइट, वी रिटर्न इन सेपरेटली, हम सेपरेटली उसको लिखेंगे और अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करेंगे। एंड मल्टीपल टाइम वी कैन कॉल्ड फंक्शन इन आवर प्रोग्राम, राइट। तो वो फंक्शन को हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। सो यहाँ पे देखो, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस, राइट। वी कैन कॉल जावास्क्रिप्ट फंक्शन मेनी टाइम्स टू रीयूज द कोड, राइट। तो यहाँ कोड की रीयूजिबिलिटी बढ़ जाएगी, बार बार कोड रीयूज होगा तो कोडिंग क्या कॉम्पैक्ट हो जाएगा और कॉन्साइज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट हमको बार बार लगते हैं उसको फंक्शन में लिखेंगे, उसको हमारे प्रोग्राम में कॉल करेंगे, तो वही मेमोरी लोकेशन पे क्या होगा कि सेम फंक्शन बार बार कॉल होगा, तो हमका हमारा जो मेमोरी है, प्रोग्राम का साइज है, वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ओके, कोड reusability, we can call a function several times so it save the coding, right। तो वो मेमोरी भी बचेगा, राइट, कोड कॉन्साइज भी हो जाएगा, राइट, और वहाँ पे हमको लेस कोडिंग करना पड़ेगा, राइट। तो इट मेक आवर प्रोग्राम कॉम्पैक्ट, वी डोंट नीड टू राइट एनी लाइन्स ऑफ कोड इस टाइम टू परफॉर्म अ कॉमन टास्क। जैसे NCR और NPR, वो जो उसके जो प्रोग्राम होते हैं, राइट, उसके अंदर हम फैक्टोरियल का फंक्शन बना के सेपरेटली लिखते हैं और बार बार फैक्टोरियल को कॉल करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम कॉन्साइज हो जाता है, यानी बार बार हमको फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना ही नहीं पड़ता है, राइट। तो ये फंक्शन के एडवांटेजेस है, राइट। तो हाउ टू राइट जावास्क्रिप्ट फंक्शन, राइट। स्क्रिप्ट इज अ टैग, फंक्शन MSG, यहाँ पे फंक्शन इज अ कीवर्ड, फंक्शन कीवर्ड है, और फंक्शन का नाम है मैसेज, MSG, राइट। और हमने उसके अंदर अलर्ट बॉक्स रखा है, अलर्ट हेलो दिस इज मैसेज, ये हमने मैसेज दिया है कि जब भी ये मैसेज फंक्शन को हम कॉल करेंगे, राइट, तो वहाँ पे क्या होगा, एक अलर्ट बॉक्स आ जाएगा, हेलो दिस इज मैसेज, राइट। अलर्ट बॉक्स के अंदर वहाँ पे हम उसको ओके या कैंसिल कर देंगे तो वो अलर्ट बॉक्स चला जाएगा, राइट। तो ये स्क्रिप्ट यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, ये हमने फंक्शन डेफिनेशन दिया है, राइट। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें, तो फंक्शन डेफिनेशन और दूसरा है फंक्शन कॉल, राइट। सी प्रोग्रामिंग में तीन चीज़ें होती थी, अगर सी प्रोग्रामिंग में आपने सी प्रोग्रामिंग अगर आपको याद हो तो वहाँ पे तीन चीज़ें होती थी। पहला तो फंक्शन इनिशियलाइजेशन होता था, सेकंड फंक्शन कॉल होता था, और थर्ड इज अ फंक्शन डेफिनेशन। इनिशियलाइजेशन हम मेन फंक्शन के ऊपर करते थे, फंक्शन कॉल हम मेन फंक्शन के अंदर करते थे, और फंक्शन डेफिनेशन हम मेन फंक्शन के बाहर करते थे। पर यहाँ पे हमने क्या किया है, दो ही चीज़ें, इनिशियलाइजेशन जैसा कुछ है नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन डेफिनेशन हमको सेपरेटली लिखना है और फंक्शन कॉल हमको करना है। तो हाउ टू कॉल फंक्शन, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं मैसेज के नाम से, मैसेज के फंक्शन के नाम से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट MSG इज अ फंक्शन नेम, MSG को कॉल करेंगे, राइट। तो वहाँ पे अलर्ट बॉक्स आएगा, जब ये कोड हम रन करेंगे तो वहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स आएगा, हेलो दिस इज मैसेज, राइट। हम ये फंक्शन को मल्टीपल टाइम हम कॉल कर सकते हैं, राइट। और सेकेंड थिंग, जो कंट्रोल्स होते हैं, वेब कंट्रोल्स, जो अभी हमने नहीं पढ़े, वो हम आगे जाके चैप्टर नंबर 3 या 4 में पढ़ेंगे, राइट। तो वहाँ पे कंट्रोल्स के थ्रू भी हम मैसेज को, हम क्या फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाउ टू क्रिएट कंट्रोल्स, ये हम बाद में देखेंगे, पर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए फंक्शन कॉल करने के लिए हम इसको देख रहे हैं। इनपुट इज अ टैग, इनपुट टैग से हम कंट्रोल्स, वेब कंट्रोल्स हम डिफाइन कर सकते हैं। वेब कंट्रोल्स यानी क्या, कमांड बटन, देन रेडियो बटन, ऑप्शन बटन, टेक्स्ट बॉक्स, सबमिट बटन, ये सब क्या वेब कंट्रोल्स, जो वेबसाइट के ऊपर हम उसका यूज़ करते हैं, राइट, फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूज़र साइड, राइट, एंड डिस्प्लेइंग मैसेजेस एंड लेबल वगैरह हम वो जो यूज़ करते हैं, वो हम उसको सबको वेब कंट्रोल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप बटन टाइप का हमने क्या क्रिएट किया है, वेब कंट्रोल क्रिएट किया है, और उसको ऑन क्लिक इज अ इवेंट, जब भी हम ये जो बटन है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, राइट, तो हमारा ये फंक्शन है कॉल हो जाएगा, वैल्यू इक्वल टू कॉल फंक्शन। तो वैल्यू यानी बटन के ऊपर लिखा आएगा कॉल फंक्शन,
और वो बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये अलर्ट बॉक्स कॉल हो जाएगा, जो मैसेज है वो कॉल हो जाएगा फंक्शन, और उसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। ओके, और यहाँ पे हम जैसे कि सी के अंदर आपको अगर याद होगा ना, तो 4 टाइप के फंक्शन हमने पढ़े थे शायद, आपको याद होगा तो फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न टाइप, फंक्शन विथ विदाउट आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप विदाउट आर्ग्यूमेंट, राइट। ये 4 टाइप के फंक्शन हमने सी के अंदर पढ़े थे, राइट। तो यहाँ पे जो उसका सेकंड टाइप हम देखते हैं कि फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। जो फंक्शन क्या है, जो रिटर्न टाइप नहीं है, जिसका जो रिटर्न वैल्यू करता है कॉलिंग फंक्शन को, राइट। तो फंक्शन जिस फंक्शन को हमने कॉल किया तो वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कि सी के अंदर भी हम क्या करते हैं कि रिटर्न एडिशन को हम रिटर्न कर सकते हैं मेन फंक्शन में, या तो फिर हम क्या करेंगे रिजल्ट को फंक्शन के अंदर ही डिस्प्ले करा देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने फंक्शन गेट इन्फो, ये फंक्शन का नाम है, राइट, और वो रिटर्न करेगा हेलो एवरीवन, राइट। तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा कॉल्ड फंक्शन को, राइट। तो हमने फंक्शन को कॉल किया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेट इन्फो, अगर ये फंक्शन हमने कॉल किया तो वैल्यू वहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा, हेलो एवरीवन जो वैल्यू रिटर्न हुआ है स्ट्रिंग वैल्यू, उसको ब्राउजर पे डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड तरीके से फंक्शन बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट फंक्शन ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, राइट। फंक्शन का हम ऑब्जेक्ट भी बना देंगे। देखो VAR वर जो कीवर्ड है वो डेटा टाइप भी क्रिएट करने के लिए यूज होता है और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए भी यूज होता है। हम बाद में देखेंगे हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, हाउ टू कॉल्ड फंक्शन बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का जो ये कंसेप्ट है वो हम बाद में देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वर कीवर्ड यूज किया है। ऐड जो है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू न्यू इज अ कीवर्ड फॉर इनिशियलाइजिंग द मेमोरी टू आवर ऑब्जेक्ट ऐड, एंड फंक्शन इज अ कीवर्ड, राइट। एंड नंबर 1 नंबर 2 रिटर्न नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो यहाँ पे हमने कितनी आर्ग्यूमेंट दी, 2 आर्ग्यूमेंट दी है और एक आर्ग्यूमेंट को हमने रिटर्न करवाया है, राइट। नंबर 1 एंड नंबर 2, राइट, और रिटर्न क्या करेगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2 उसको रिटर्न करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन यानी राइट एलएन यानी न्यू लाइन पे वो डिस्प्ले करेगा, और हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा तो भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐड 2,5, तो जो ऐड इज अ फंक्शन ऑब्जेक्ट नेम जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, ऐड 2 and 5, ये 2 आर्ग्यूमेंट जाएंगे 2 and 5, और रिटर्न क्या करेगा 2 + 5 यानी 7। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसका जो आंसर आएगा वो 7 आ जाएगा, राइट। सेम सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हमको पावर फाइंड करना है, राइट, तो पावर क्या करेगा, यहाँ पे हमने फंक्शन लिया है POW पावर इक्वल टू न्यू फंक्शन नंबर 1 नंबर 2 रिटर्न मैथ डॉट पावर। मैथ इज अ क्लास, इनबिल्ट क्लास इन जावास्क्रिप्ट जो ऑलरेडी सिस्टम का क्लास है। डॉट पावर, पावर इज अ व्हाट, पावर इज अ मेथड ऑफ मैथ क्लास, और उसके 2 आर्गुमेंट हमने पास किए 2 3, तो 2⁻3, राइट, 2⁻3 इक्वल टू 8। तो जो आंसर है वो यहाँ पे 8 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो ये फंक्शन विथ ऑब्जेक्ट यानी फंक्शन का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, राइट। तो ये इस तरह हमने ऐड और पावर का हमने डिफाइन किया है, ओके। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस है जो असाइनमेंट में हमको लिखने हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 3 के। एक्सप्लेन फॉर लूप विथ सिंटेक्स एंड एग्जाम्पल, राइट। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, राइट। और एक बात याद रखो, फॉर लूप के अंदर क्या है, फॉर लूप के बाद जो इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन आएगा और कंडीशन के बाद भी सेमीकोलन आएगा, ये बात याद रखना, राइट। तो यहाँ पे ये फॉर लूप का सिंटेक्स और एग्जाम्पल हमको यहाँ पे इसको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। एग्जाम्पल आप कोई भी दे दो, आप इवन नंबर प्रिंट कर दो, ऑड नंबर प्रिंट कर दो, या फिर जो प्रोग्राम मैंने बताया उस तरह से आप कोई भी नंबर वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, राइट। सेकेंड इज द एक्सप्लेन वाइल लूप विथ सिंटेक्स एंड एग्जाम्पल। ओके, वाइल लूप क्या होगा, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, फिर वाइल लूप के साथ कंडीशन एंड ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे वाइल लूप
देखो यहाँ पे क्या है, ये एग्जांपल देखो, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और स्टेटमेंट के बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो इस तरह हमको कोई भी एक प्रोग्राम लेके उसको एक्सप्लेन कर देना है एग्जाम में, राइट। एग्जाम में आया तो 4 मार्क्स के लिए हमको एक कोई भी प्रोग्राम एक्सप्लेन करना है, राइट। एक्सप्लेन डू वाइल लूप विथ सिंटेक्स एंड एग्जाम्पल, सेम थिंग डू वाइल लूप हमने यहाँ पे देखा है, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये एग्जाम्पल है डू वाइल लूप का। आप भी कोई भी एग्जाम्पल लेके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। डू वाइल लूप में क्या होगा, पहले इनिशियलाइजेशन, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड फाइनली कंडीशन, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन द वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ओके, क्या डिफरेंस होगा वाइल लूप और डू वाइल लूप में? वाइल लूप में क्या होगा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सीक्वेंस आएगा। डू वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड कंडीशन, राइट। ये एक डिफरेंस हो गया। सेकंड क्या होगा कि वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप में कभी भी है ना एंट्री नहीं करेगा, राइट। इंटरप्रेटर क्या करेगा, वाइल कंडीशन फॉल्स तो लूप के बाहर आ जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, राइट। डू वाइल लूप में क्या है, पहले इनिशियलाइजेशन है, बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और फाइनली कंडीशन है। तो लूप में कंपाइलर एक बार एंट्री करेगा और जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट, एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही, जो भी डू वाइल लूप का स्टेटमेंट है वो, राइट। थर्ड क्या है इसका, सिंटेक्स, वाइल का सिंटेक्स लिखो, डू वाइल का सिंटेक्स लिखो, और फोर्थ आपका उसका एग्जाम्पल दे दो, राइट। तो ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वाइल लूप और डू वाइल लूप का, राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। अब फैक्टोरियल और गिवन नंबर हमको प्रोग्राम लिखना है तो हम तीनों लूप से बना सकते हैं, या तो फोर लूप से भी बना सकते हैं, वाइल लूप से भी बना सकते हैं और डू वाइल लूप से भी बना सकते हैं। पर फैक्टोरियल का प्रोग्राम फोर लूप से कॉम्पैक्ट और अच्छी तरह बन जाता है, राइट। और वही चीज़ें हम वाइल लूप और डू वाइल लूप से भी कर सकते हैं, राइट। तो फैक्टोरियल यानी क्या, अगर हमने 5 नंबर लिया है, राइट, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आएगा, 120, राइट। 120 इट विल योर आंसर, राइट। सो हमको क्या करना, आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस, या फिर आपको प्रॉम्प्ट लेके इनपुट लेके यूज़र से इनपुट लेना है, राइट। और वो इनपुट को आपको कंडीशन में देना है, राइट। तो हमने चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था, राइट, हाउ टू स्कैन वैल्यू फ्रॉम यूज़र साइड। तो वैल्यू ले लो या डायरेक्टली वेरिएबल वैल्यू डिफाइन कर दो। 4 का फैक्टोरियल लेना है तो आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, फैक्ट इज अ वेरिएबल, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट फैक्ट, तो करोगे तो फैक्टोरियल फाइंड हो जाएगा, राइट। उसके बाद है फिबोनाची सीरीज, राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग फिबोनाची सीरीज। तो यहाँ पे कोई भी रेंज ले लो, यानी 10 फाइनल नंबर 10 ले लो कि 10 तक जितने भी सीरीज प्रिंट करो, या फिर 50 ले लो, राइट। आपको क्या करना है, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है। फिबोनाची सीरीज यानी मीन्स व्हाट, आपको स्टार्टिंग करना है 0 एंड 1 से, राइट। फिर 0 और 1 का एडिशन करना है, उसका आउटपुट प्रिंट करना है 1, 0 + 1 1। अब जो लास्ट 2 आउटपुट है, राइट, उसको ऐड करना है, 1 + 1 2, उसके बाद 1 + 2 3, उसके बाद 2 + 3 5, देन 3 + 5 8। इस तरह आपको क्या करना है, ये प्रोग्राम को बनाना है, राइट। एंडिंग लूप आपको खुद से डिफाइन कर लो, 50 ले लो, 20 ले लो, वॉटेवर आपको जो भी सूटेबल लगे वो ले लो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिबोनाची सीरीज हम कोई भी लूप से बना सकते हैं, आपको जो लूप सूटेबल लगे वो लूप से आप है ना फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बना दो, राइट। अब ये देखो, फिबोनाची सीरीज और फैक्टोरियल के प्रोग्राम हम वो दो टाइप के स्टेटमेंट से नहीं कर सकते, सिक्वेंशियल से और कंडीशन से। तो यहाँ पे इटरेशन जरूरी है, और इटरेशन के प्रोग्राम के लिए हमको फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप ही यूज़ करना है, राइट। तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद क्या है, राइट अ प्रोग्राम फॉर प्रिंट ऑल इवन नंबर फ्रॉम 0 to 100, राइट। इवन नंबर 0 2 4 8 10 अप टू 100। तो आपको प्रोग्राम बनाना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि लूप आपको 2 से इंक्रीमेंट करना है, और इनिशियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनिशियलाइजेशन 0 से किया है और 2 से लूप को इंक्रीमेंट किया है तो इवन नंबर प्रिंट होगा। अगर इनिशियलाइजेशन 1 से किया है और अगर आपने 2 से इंक्रीमेंट किया तो ऑड नंबर प्रिंट होगा, राइट। तो इनिशियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोग्राम के अंदर। तो आप कोई भी लूप लो और ये प्रोग्राम बना दो, राइट। राइट अ प्रोग्राम फॉर प्रिंट मल्टीपल ऑफ 8, राइट। तो स्टार्टिंग ऑफ लूप क्या होगा, 8 होगा, और इंक्रीमेंट बाई 8, और आपको ये 100 तक 8 का टेबल आप प्रिंट कर दो, राइट। उसके बाद प्रोग्राम फॉर द फाइंड एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग फंक्शन,
अब राइट, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपका पाई का वैल्यू फिक्स है, आर का वैल्यू आप यूजर से ले लो या फिर आर का वैल्यू कुछ भी डिफाइन कर दो और एरिया कैलकुलेट करो। मगर ये प्रोग्राम किससे करना है, फंक्शन बनाना है, फंक्शन एरिया, और एरिया को आपको आपके उसके अंदर कॉल करना है, राइट। आपको एरिया के फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वेयर, और एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, और ये आपको फंक्शन के थ्रू करना है। देखो एग्जाम में अगर इस तरह आया, राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, तो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट का प्रोग्राम आएगा, सिंपल वाला, राइट। विथ फंक्शन बोला है तो आपको फंक्शन बना के उसको कॉल करना पड़ेगा, राइट। और हमने ऑलरेडी देखा है हाउ टू डिफाइन फंक्शन एंड हाउ टू कॉल फंक्शन, राइट, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, राइट। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर यूजिंग फंक्शन, राइट। तो हमने जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया था वो एक फंक्शन में रखो पूरा, और उसको फंक्शन को कॉल करो। तो आप यहाँ पे प्रोग्राम के आर्ग्यूमेंट वैल्यू, फैक्टोरियल का वैल्यू पास भी कर सकते हो, या फिर सिंपल प्रोग्राम ही आप बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी लूप लो तीनों में से और कैसा भी प्रोग्राम बनाओ, विथ रिटर्न टाइप और विदाउट रिटर्न टाइप, वॉट एवर सुटेबल फॉर यू, राइट। यू कैन राइट योर प्रोग्राम, यू कैन रन प्रोग्राम यूजिंग ब्राउजर, ऑन ब्राउजर एंड राइट ऑन नोटपैड। ओके, नोटपैड पे प्रोग्राम लिखो, ब्राउजर पे उसको सेव करो और रन करो, राइट। और ये नोटबुक में आपको लिखना है। उसके बाद लास्ट वन, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन यूजिंग फंक्शन। अब आपको क्या करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशन का प्रोग्राम बनाना है। अरिथमेटिक यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड, राइट। आपको क्या बनाना है, ऐड फंक्शन बनाना है, सब फंक्शन बनाना है, डिवीजन का डिव फंक्शन बनाना है, और मल्टीप्लिकेशन का एम्यूएल फंक्शन बनाना है, और मोड का एमओडी मोड फंक्शन बनाना है। ये फंक्शन बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये पांचों फंक्शन को आपको स्विच केस में कॉल करना है, राइट। ये जरा लेंदी प्रोग्राम होगा और ये आपको करना है। स्विच केस ले लो, कंडीशन दे दो, मेनू बना दो 1 2 3 4 5 और 6 एग्जिट के लिए। देन 1 के अंदर ऐड के फंक्शन को कॉल करो, और टू ऑप्शन के लिए सब्ट्रैक्शन के फंक्शन को कॉल करो, थर्ड के लिए मल्टीप्लिकेशन को कॉल करो, फोर्थ के लिए डिवीजन और फिफ्थ के लिए मॉड को कॉल करो। तो ये तुम्हारा प्रोग्राम हो जाएगा। तो टोटल 11 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। देखो एग्जाम में है ना, ये जो CSS का जो क्वेश्चन पेपर मैंने देखा उसके अंदर प्रोग्रामिंग पूछी हुई है, राइट। तो आपको क्या करना है, सारे प्रोग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत इजी है, पूरा कॉपी है, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स C++ और जावा का। जो लॉजिक है वो भी सेम है, राइट। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एकदम इजी है। आप अपना पुराना नोटबुक भी रिफ़र करो, वहाँ पे भी आपको आंसर मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो, या फिर मुझे पर्सनली आप बोलो, राइट। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन का आपका ये असाइनमेंट है लेक्चर नंबर 3 का, राइट। तो यहाँ पे आपको इसको नोटबुक में लिखना है, राइट। तो हमने पूरा क्या डिस्कस किया, 3 टाइप्स ऑफ लूप डिस्कस किया, फॉर लूप, फाइल लूप, डू वाइल लूप, एंड जो फाइनली हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप, राइट, एंड फंक्शन विथ रिटर्न टाइप, और थर्ड जो टॉपिक था वो फंक्शन ऑब्जेक्ट एग्जांपल दिया, राइट। तो ये 3 चीज़ें फंक्शन में हमने देखी, 3 तरीके के लूप देखे, राइट। तो ये लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, you can write in comment box, and also you can mail me and message me personally if you have any doubt regarding those topics, loops and the functions. Okay.